First video of inverse trigonometric function, that is the chapter 2 of NCERT. In today's video I will talk only about principal values because that is what is there in your syllabus. So let's talk about some basic concepts which we have already done in class 11th. We know that sine functions, cosine, tan, cot, secant and cosecant functions, यानी कि all these function has domain and range, right? So obviously their domain is from R, like for sine it is R and the range is from -1 to 1. मतलब जो y की value है, अगर y is equal to sin x है, if this is y is equal to sin x, so y can have the maximum value as 1, क्योंकि आपको पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा. सिमिलरली सेम थिंग्स गोज फॉर cos also. Similarly for tan, when we talk about tan, so tan has the domain as R minus, यानी कि all real number except 2n plus 1 pi by 2, right? And the range is R. Similarly cot cannot have the value x is equal to n pi and the range is R. Similarly for sec, the range is all real numbers except 2n plus 1 pi by 2 and the range is R minus all numbers which are lying between -1 to 1. And similarly for cosec, again the domain is R minus n pi and the range is R all real numbers except -1 to 1, right? So let's talk about what do you mean by principal value. First आपको ये पता होना चाहिए कि principal value होती क्या है. Let me explain you using a graph. आपने ये ग्राफ ऑलरेडी y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे प्लॉट करना है वो आपको ऑलरेडी आता है. आप साइन की अलग अलग वैल्यूज ले लीजिए, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, सिमिलरली माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, राइट, and -3 pi by 2, and you can plot this. So it will come as a wavy curve and you can see that the value is ranging between -1 to 1. इसी का अगर इन्वर्स का ग्राफ प्लॉट करना है तो हो जाएगा y is equal to sin inverse x, यानी कि जो फंक्शंस हैं वो चेंज हो गए. आपने कुछ नहीं करना, x axis जो है that will become the y axis and y axis will become x axis. That is how we write inverse, right children? So this is how the graph of sine inverse will look like. Similarly, if you want to have a look at cos graph, y is equal to cos x का ये ग्राफ होता है and inverse का cos inverse x का ये ग्राफ हो जाएगा. Again x and y जो है वो आपस में इंटरचेंज कर गए हैं, right? Let's talk about similarly graph of cosec x and cosec inverse x. Again the axes have interchanged, they have just rotated the graph. Similarly go ahead, for sec this is the graph and sec inverse x this is the graph. Again only it has interchanged, right, the domain and the range. Similarly go ahead, this is tan x in graph and this is tan inverse x. Again the axes have interchanged, right? Similarly for cot also. Now what is there to remember? So I want you to remember this table. This table can be asked as a 1 marker HOTS question, that आप मुझे डोमेन और रेंज बताइए इन्वर्स फंक्शंस की. तो साइन इन्वर्स का जो डोमेन है वो -1 to 1 होता है, cos इन्वर्स का -1 to 1 होता है, cosec इन्वर्स का ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1 के बीच में जो भी नंबर्स आते हैं. सिमिलरली sec इन्वर्स का भी सेम, tan and cot का all real numbers. These are the domain. Similarly you have to learn all the ranges also. Sin inverse की जो range यानी कि y होता है वो -90 to 90 के बीच में होता है and they are included. मतलब square bracket means the extreme values are included. ठीक है, मतलब -90 भी हो सकता है और +90 भी हो सकता है. So that is why जब extreme values होती हैं इंक्लूडेड होती हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट. सिमिलरली कॉस इन्वर्स की प्रिंसिपल वैल्यू 0 to पाई के बीच में आएगी. कोसेक इन्वर्स की वैल्यू साइन ही होगा, लेकिन क्योंकि आपको पता होना चाहिए कोसेक 0 जो है वो नॉट डिफाइन हो जाता है, तो दैट इज़ वाई 0 इंक्लूडेड नहीं है. सिमिलरली
सेक इनवर्स में कॉस एंड सेक सेम आएगा, लेकिन अगेन 90 नहीं आएगा, अगेन क्योंकि 90 जो है वो नॉट डिफाइन होता है, राइट. sec 90 is not defined, so that is why 0 to pi close interval but 90 is not included. tan inverse का -90 to 90 open bracket, यानी कि उसके अंदर वाली वैल्यूज आएंगी, -90 और 90 इंक्लूडेड नहीं है, तो उसको राउंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं. सो -90 to 90 round bracket, that is open bracket, right children. Now the next one is cot inverse, and cot inverse is again 0 to pi. Again the bracket you can very well see it is open. Open मतलब again 0 नहीं हो सकता और 180 भी नहीं हो सकता, लेकिन उसकी बीच की वैल्यूज कोई भी हो सकती हैं. सो दिस इज़ वेयर योर क्वेश्चंस यू हैव टू चेक कि जब भी किसी का प्रिंसिपल वैल्यू निकालने को बोला गया है तो वो सबका इसी उसमें लाई करना चाहिए. दिस इज़ व्हाट इज़ द exercise all about. Now let me help you in finding the principal values. Exercise 1.2 करते हैं. Suppose मुझे question number 1 करना है, तो sin inverse of -half, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, let's take it as y, first step. So can I say sin y की वैल्यू -half आ गई. अब हमें ये तो पता है कि sin की वैल्यू हाफ कब होती है, राइट. अगर हमें टेबल लर्न है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, तो साइन की वैल्यू हाफ कहाँ है, 30 पे. और 30 को आप कैसे लिखते हो, पाई के टर्म में. पाई इज 180, मुझे ऊपर 3 चाहिए तो ऑब्वियसली 6 लिखना है, तो π/6, राइट. अब आपको याद होना चाहिए साइन ऑफ माइनस, साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. So sign is negative in this quadrant and sign is negative in this quadrant, यानी कि third and fourth quadrant में. So we will take the fourth quadrant. Why we will take the fourth quadrant? क्योंकि -90 minus theta lies in the fourth quadrant. So y की वैल्यू क्या आई, -π/6, जो कि क्या ये बिलोंग करती है उसकी रेंज में, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में. You can check. I have just told you what is the principal value in the previous slide. Have a look here. It is -90 to 90 close bracket. So -π/6 lies between -90 to 90 close bracket. Yes, it does. So this is my answer. अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट लेना चाहोगे तो वो आंसर लाई नहीं करेगा. कैसे देखते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल्स होते हैं आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता है 90 minus theta and 360 plus theta. इसमें होता है 90 plus theta and 180 minus theta. इसमें होता है 180 plus theta and 270 minus theta. इसमें होता है 270 plus theta and 360 minus theta. अब हम 90 और 270 यूज़ नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए 90 में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लग जाते हैं, मतलब साइन चेंजेस टू कॉस एंड कॉस चेंजेस टू साइन, राइट. दैट इज़ वाई वी कैन नॉट यूज़ दिस. सो दैट मीन्स कि क्या यूजिंग बचा, हम सिर्फ 180 और 360 ही यूज़ कर पाएंगे. सो अगर मैं 180 प्लस थीटा यूज़ करूँ, थर्ड क्वाड्रेंट यूज़ करना चाहूँ इस क्वेश्चन में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन पाई प्लस π/6. सो विच इज़ वॉट, 7π/6. क्या 7π/6 लाई करता है -90 to 90 में? नो, इट डज नॉट लाई. सो दैट इज वाई वी हैव टू चेक कि हमें कौन सा क्वाड्रेंट दोनों में से यूज करना है. दिस इज द लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग. ओके, सिमिलरली लेट्स इरेज द बोर्ड एंड डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 करना है. अगेन कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू y ले लो. सो cos y इज इक्वल टू √3/2. अगेन ये तो आपको पता ही है कि cos की जो वैल्यू है वो √3/2 कब होती है, ये एवरीबडी नोज दैट, राइट. सो यू जस्ट और इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं है तो आपको कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है. सो आंसर इज cos y इज इक्वल टू cos π/6. सो y की वैल्यू π/6 आ गई. क्या ये लाई करती है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में, चेक कर लो. 0 to pi, yes it lies. Similarly, third question, cosec inverse 2 equals to y ले लीजिए. So again
cosec y is equal to 2 आ गया, राइट चिल्ड्रन. सो अगेन वैल्यू 2 कब होती है? पाई बाय 6 का ऑपोजिट, राइट, cosec pi by 6. So y is pi by 6. Does it lie in the range minus pi by 2 to pi by 2? Right? What is the range of cosec? Check करो. Minus 90 to 90 and क्या not included? 0 not included. तो ये आपको पता है, तो 0 तो आई ही नहीं है. So this is what is the value of cosec. Third question. Similarly, फोर्थ अगर करना है तो tan inverse minus root 3 is equal to y. So tan y is equal to minus root 3. tan की वैल्यू root 3 कब होती है? ये तो हमें पता ही है, पाई बाय 3 पे. अगेन tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव. तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचा? सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट. सो फोर्थ क्वाड्रेंट इज tan of minus theta. तो मुझे पता है tan of minus theta is minus tan theta. So y की वैल्यू क्या आ गई? minus pi by 3. Does it lie in the range? tan की रेंज क्या थी? minus 90 to 90 close bracket, right? And please check minus 90 to 90, sorry, not close bracket, I'm sorry, the brackets are open. So you need to check कि कैसा लिखा हुआ है. So it is open bracket. ओपन मतलब माइनस 90 और 90 के बीच में होना चाहिए. दैट इज हाउ यू विल से. दैट्स क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू. सिमिलरली 5 करना है तो सेम वे, cos y इज इक्वल टू माइनस हाफ. अगेन cos की वैल्यू हाफ कब होती है पता होनी चाहिए? cos पाई बाई 3. cos कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. सो कहाँ कहाँ नेगेटिव है cos? इट इज़ नेगेटिव इन दिस क्वाड्रेंट, right, and this quadrant, second and third. तो obviously second लेने का फायदा है क्योंकि एंगल छोटा रहेगा, 180 minus theta, right children? So cos y, so it is cos, this is what we are getting. So y is equal to 2 pi by 3. Does it lie in the range? Yes it does. It was 0 to pi cos का जो range था, right children? So that is how these questions will be done. Similarly 6 के लिए सेम चीज़, यही चीज़ रिपीट हो जाएगी. यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा. -1 कब होता है? पाई बाय 4 पे. तो माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6, राइट चिल्ड्रन? सेम ओपन ब्रैकेट minus 90 to 90. येस इट डज लाई. सिमिलरली अगर आप सेक पे जाओगे, सेम चीज़, sec इनवर्स 2 बाई रूट 3 इक्वल्स टू y डालोगे तो sec y इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3. सो sec की वैल्यू 2 बाई रूट 3 कब होती है? sec पाई बाई 6 पे. क्योंकि पॉजिटिव है तो कुछ कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है. y इज इक्वल टू पाई बाई 6. डज इट बिलोंग टू द रेंज ऑफ sec? चेक कर लो. 0 टू पाई, एंड इसमें क्या नॉट इंक्लूडेड होता है? 90 नॉट इंक्लूडेड होता है sec में. आप चेक कर लीजिए. लेट मी शो यू द टेबल. चेक, sec में 90 नॉट इंक्लूडेड होता है, राइट? सिमिलरली 8th क्वेश्चन cot. सो cot y इज इक्वल टू रूट 3. रूट 3 कब होती है? अगेन हमें पता है cot पाई बाई 6. तो y की वैल्यू पाई बाई 6 आ गई. डज इट लाई इन द ओपन ब्रैकेट 0 टू पाई, जो उसकी cot की रेंज है? येस इट डज. So this is what is the answer. Similarly 9th क्वेश्चन करने जाएंगे तो cos y is equal to -1 by root 3. Again 1 by root 2, sorry. So cos नेगेटिव, cos की वैल्यू पाई बाय 4 होती है, 1 by root 2, right? So again cos नेगेटिव आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. तो सेकेंड एंड थर्ड, तो हम सेकेंड यूज़ करेंगे, राइट? cos पाई माइनस पाई बाय 4. अगेन थर्ड क्यों नहीं यूज़ कर सकते? तो क्योंकि इसमें पाई प्लस पाई बाय 4 करना पड़ेगा, जो कि 5 पाई बाय 4 आ जाएगा, जो कि बड़ा आ जाएगा 0 टू पाई से. तो इसमें हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई? 3 पाई बाय 4, विच लाइज बिटवीन 0 टू पाई, राइट चिल्ड्रन? सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9. सिमिलरली 10 के लिए सेम चीज़ करना है.
10 के लिए cosec y इज इक्वल टू -√2. cosec की वैल्यू √2 कब होती है ये तो हमें पता ही है. cosec π/4. अगेन cosec नेगेटिव कहाँ होता है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. ऑल पॉजिटिव. साइन एंड उसका रेसिप्रोकल, राइट. tan एंड उसका रेसिप्रोकल, cos एंड उसका रेसिप्रोकल. सो साइन एंड cosec आर पॉजिटिव. तो ये दोनों ट्राइंगल ये दोनों रह गए. तो कैन आई से इट इज cosec -π/4 क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में -θ होता है. अगेन 180 प्लस थीटा करेंगे तो रेंज से बाहर चला जाएगा. तो y की वैल्यू क्या आ गई? -π/4. डज इट लाई इन द रेंज? येस इट डज. रेंज क्या है? -90 to 90, राइट. cosec की पता ही है, राइट चिल्ड्रन. और 0 नॉट इंक्लूडेड. ऑल राइट, लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू डू क्वेश्चन नंबर 11. 11 भी बहुत सिंपल है. आपको कुछ नहीं करना, तीनों की अलग अलग रेंज फाइंड कर देनी है, जो कि हम ऑलरेडी मैं पहले आपको सिखाई चुकी हूँ कैसे करनी है. सो बेसिकली आप क्या करेंगे, इसको x ले लेंगे, tan इनवर्स 1 को x ले लोगे तो tan x इज इक्वल टू 1. tan की वैल्यू 1 कब होती है? π/4 पे. तो x हमारा आ गया π/4. सिमिलरली cos इनवर्स -½ इक्वल टू y ले लोगे. सो cos y इक्वल्स टू -½. cos की वैल्यू चिल्ड्रन हाफ कब होती है? दैट यू नो, cos π/3. लेकिन माइनस है तो अगेन क्वाड्रेंट कौन सा यूज होगा? पाई - π/3, राइट. सो आंसर क्या आ गया y का? 2π/3. सिमिलरली साइन इनवर्स -½ को आप z ले लोगे और साइन z इज इक्वल टू हाफ. साइन की वैल्यू हाफ कब होती है? π/6 पे. और यहाँ पे क्या आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट, π/6, राइट. सो z इज -π/6. सो व्हाट इज आवर फाइनल आंसर? यहाँ वैल्यूज पुट कर दो सबकी. तो यानी कि फाइनल आंसर जो x + y + z जो है वो क्या आएगा? π/4 + 2π/3 + -π/6. सो जस्ट सिंप्लीफाई and you will get your answer as 3π/4. All right children, so this is how you should always know that सारी values जो x, y और z की निकाली है वो प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में लाई करनी चाहिए. सिमिलरली इसका भी ऐसे ही करोगे. cos इनवर्स हाफ हमें पता ही है क्या होता है. इसको भी x ले लोगे, इसको भी y ले लोगे. तो ये हमें x + 2y फाइंड करना है. तो x की वैल्यू हमारे पास π/3 आएगी प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू हमारे पास π/6 आएगी, राइट चिल्ड्रन. सो अगेन आप सॉल्व कर सकते हो. आपका जो फाइनल आंसर है वो 2π/, दैट विल बी 2π/3 फॉर क्वेश्चन नंबर 12. अगर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y है तो ये तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन हो गया. -90 to 90 इक्वल टू साइन के साथ, राइट. इनवर्स जब साइन इनवर्स होता है तो क्लोज ब्रैकेट आते हैं, राइट. सिमिलरली ये क्वेश्चन 14th क्वेश्चन भी हमें करना आता ही है. इसमें tan इनवर्स इसको x ले लेंगे और इसे y ले लेंगे. अगेन x की जो प्रिंसिपल वैल्यू है बेटा, tan की वैल्यू √3 कब होती है? π/3 पे, राइट. और यहाँ पे sec इनवर्स -2, तो sec π/3 होगा और माइनस है तो पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी कि पाई - π/3 आएगा. आप सॉल्व करके देखिएगा तो y का आंसर आएगा 2π/3. अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि π/3 - 2π/3. सो व्हाट इज योर आंसर? -π/3. सो आंसर इज B part. Properties is not in your syllabus, so that is all. But yes, there are few things which you should know. These things are not in your syllabus, so I am not going to touch upon this. But just 2-3 questions. Please have a look here at question number 17 of the exercise. Question number 17 क्या कहता है कि आपको 16-17 बेसिकली दोनों जो आपके सिलेबस में है, बस मैं उतना ही करा रही हूँ. NCERT में जो है, जो आएगा मतलब बोर्ड्स में. सो आप क्वेश्चन नंबर 16 चेक करिए. 16 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, राइट. और ऑब्वियसली 20th आएगा, 21 आएगा. सो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 16 चिल्ड्रन. तो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3.
अगर मैं डायरेक्टली 2π/3 लिख दूंगी तो वो साइन की रेंज में लाई नहीं करता, तो ऑब्वियसली मुझे ये 2π/3 को स्प्लिट करना पड़ेगा चिल्ड्रन. सो कैन आई स्प्लिट इट एंड राइट इट एज पाई माइनस π/3. चेक करो, अगर मैं पाई माइनस π/3 करूंगी तो मेरे पास आंसर 2π/3 आएगा, राइट. सो व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू? कैन आई से द प्रिंसिपल वैल्यू इज π/3 बिकॉज साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा. तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 विच विल फर्दर गिव मी π/3. राइट चिल्ड्रन? ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 17 जब करोगे तो tan इनवर्स अगेन हमें 3π/4 को स्प्लिट करना पड़ेगा. कैन आई राइट इट एज पाई माइनस π/4 अगेन बाय 180 माइनस थीटा after school to college. So 180 minus theta will give me a negative answer. That means it will be tan inverse of tan minus π/4. So what is my answer? My answer is minus π/4. Right children? और ये प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है, उसकी जो रेंज होती है, राइट. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर अगर आपको चाहिए तो अगेन आपको पता होना चाहिए 19 में कॉस इनवर्स ऑफ कॉस. अगेन कॉस जो है 7π/6 को क्या लिख सकते हैं? 2π. चेक करो, 2π माइनस 5π/6. चेक करो, 6 2 12, 12 में से 5 गया क्योंकि इधर पॉजिटिव होता है और आंसर सारे पॉजिटिव दिख रहे हैं. तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? अगेन आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. सो कॉस इज पॉजिटिव हियर एंड हियर, राइट. So answer will be cos inverse of cos 5π/6. So answer is 5π/6. Does it lie in the range 0 to pi? Yes, it does. So that's your answer for question number 19. Similarly आगे करना है question number 20. तो ये थोड़ा ये आसान है, हम ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज में सीख ही चुके हैं साइन इनवर्स माइनस हाफ कैसे निकालते हैं, जो कि माइनस π/6 आएगा. प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन ऑफ माइनस 1/2 इक्वल्स टू y ले लो. सो साइन y इक्वल्स टू माइनस साइन π/6. इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस π/6, राइट चिल्ड्रन. सो आंसर आ गया माइनस π/6. तो ये क्या हो गया? साइन ऑफ π/3 प्लस π/6 विच इज साइन π/2. सो यू शुड नो दैट योर आंसर इज 1. सिमिलरली 21 भी ऑलमोस्ट सेम लॉजिक पे है. tan इनवर्स की वैल्यू √3 कब होती है? ये आपको पता है, tan की वैल्यू √3 π/3 पे होती है. और cot मतलब इसको अगेन वही वाला लॉजिक, इसको x इसको y ले लेंगे. सो cot y इज इक्वल टू माइनस √3. cot की वैल्यू √3 कब होती है? cot π/6 पे. अब माइनस का साइन है तो क्या करेंगे? cot कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है? सेकेंड में after school to college. So cot is negative here, right, and here. So pi minus π/6. So answer क्या आ गया? 5π/6. So finally यहाँ पुट कर दो. x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? π/3 प्लस 5π/6. टेक LCM. सॉरी, प्लस साइन नहीं है बेटा, बीच में माइनस साइन है. पुट अ माइनस साइन, टेक LCM एंड योर आंसर विल बी माइनस π/2. सो आंसर इज माइनस π/2 विच इज डी पार्ट, राइट. दैट इज क्वेश्चन नंबर 21. आगे चेक करते हैं. आगे भी एग्जाम्पल नंबर 9 सिलेबस में है. सेम वे 3π/5 को स्प्लिट कर देना है. पाई माइनस 2π/3, right? 3π can be written as pi minus 2π/5. चेक करो, 5 में से 2π गया, 3π, right? This is 2π, right? So answer will be 2π/5, right? Now question number 1 and 2 is in your syllabus. That's it. बाकी कुछ नहीं करना. So again cos inverse of cos
13 पाई बाय 6 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? 13 है तो अंडरस्टूड है कि 2 पाई प्लस पाई बाय 6, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज़ कर रहा है. सो आंसर क्या आया? पाई बाय 6, राइट. फर्स्ट क्वाड्रेंट है 360 प्लस थीटा, सारे पॉजिटिव होते हैं तो आंसर पाई बाय 6 आ गया. सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में tan इनवर्स ऑफ tan 7 पाई बाय 6 को कैसे लिख सकते हैं? पाई प्लस पाई बाय 6. अगेन 180 प्लस थीटा, 180 plus theta, tan is positive, so pi by 6. Does it lie? Everything lie in the range. चेक करो, ये तो 0 to pi के बीच में lie करता ही है और ये भी -90 to 90 open bracket के बीच में lie करता है. So yes, this is all about your chapter. That's it. Nothing else is in the syllabus, so that completes your chapter inverse trigonometry. Thank you, children. If you have any doubt regarding the principal value, kindly mention in the comment below.